So in mate selection, we had seen that if all the focus is put on retaining the semen, if all the focus is put on suppressing the sexuality of a man, by suppressing all the thoughts that a man has to have an experience of woman in any form, sight of a woman, touch of a woman, uh, voice of a woman, and intimacy and intercourse experience of a woman, all these kind of things are suppressed and all the focus is put on semen retention, then the semen cannot be retained. Semen can be retained only if all the focus it put on the superiority, on the creative activities, all the chakra exercises which increase a man's intelligence, intuition, courage, adventure, humor. Then the brain becomes the sucker of the sexual energy from the. This is a third voice note in the series, the visibility of which is restricted to 124 handpicked contacts. What we had seen next is that if all the focus is put on making the mind a beautiful mind, an inquisitive mind, an intelligent, intuitive mind, creative, courageous mind, humorous, adventurous, exploring mind, then the brain starts sucking all the energy from the sperm. And if the man continues this lifestyle for decades and years, then the brain bypasses the sperm, the need to retain the semen, and all the energy is sucked from the chakras, through the chakras from the cosmos. So this was a summary of semen retention. This is the fourth voice note in the series with visibility all 3786 contacts. What we had seen as the message of mate selection is that objective of man's brain is to be able to find a mate or to become a superior person that a mate can find. Now, in order to achieve that level, a person has to make himself more and more intelligent, more and more confident, more and more charismatic, more and more creative, more and more adventurous, more and more witty, more and more well read, more and more well traveled, more and more well educated. So if a man walks this way, then he becomes more and more qualified for the mate selection. Please understand. And this is where all the sperm must go. This is the fifth voice note, and the visibility is hand-picked contacts. We had seen that all the actions of humans should be rational and logical and in accordance with the natural laws of nature, according to the properties of supernatural forces in universe, according to the laws of infinite forces of the nature, the leela of which, the play of which is essentially this world is. Please understand, this whole world, this voice note, this listening, this recording is basically leela of certain fundamental electromagnetic and other forces which are yet not explored by science or engineering, but essentially it is a leela of infinite forces. This is the sixth voice note in the series with visibility all 3786 contacts. We had seen that the world runs according to the laws of nature, the supernatural, fundamental, infinite forces. And if some action of humans is not in accordance with those laws, or if those actions are performed, then according to those laws, those actions are going to create some damage or self sabotage in the cell, in the organism, in the colony of the organism, and in the society essentially. So the society, the organism, the collective consciousness has this right to prevent those actions from being performed or prohibit those actions or create laws. But that does not mean the society start labeling it as bad, immoral, or dirty or ganda. Please understand very clearly. So, in society, if certain actions or tendencies which are essentially natural, but despite being natural, if those tendencies and actions are performed or permitted
in the society, then the result of that practice or action is going to bring a situation where, in order to prevent any kind of damage or self sabotage, the society will have to put a lot and lot of time and energy and effort and intelligence and creativity and resources, plus management of resources, which is a hustle, which is a buzzard, which is a very tough engineering level problem, which is a tough engineering plus management problem. So society may not be able to handle those situations. That's why it is necessary to prevent those actions. आप समझ रहे हैं? मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, चाइल्ड अब्यूज से समझते हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशन समझते हैं। एक बच्चे को सिखाया जाता है ये गुड टच है और ये बैड टच है। तो बैड टच वो कैसे हो गया, इसको हम पूरा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल का माइक्रोस्कोप लेके इसमें बाल की खाल निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि बैड कैसे बैड है। ठीक है, अभी ऐसा टॉपिक है ना कि इसमें कहां से मैं अटैक करूं। मतलब एक सेल को दूसरे सेल को टच करके ये कंफर्म करना आवश्यक था आज से करोड़ों साल पहले कि मेरे विसिनिटी में कौन है, और जो है उसके होने से मेरा सर्वाइवल एंड रिप्लिकेशन वो बरकरार रहेगा, डैमेज होगा या फिर वो सुदृढ़ होगा। इसको चेक करने के लिए सेल को टच करना बहुत आवश्यक है। So this is the 9th voice note in the series with limited visibility. We had seen कि एक सेल अपने आसपास के सेल को टच करके कंफर्म करना चाहता है कि वो बगल के सेल उसके जैसे ही हैं कि नहीं। यदि हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यदि कोई और प्रकार के सेल है तो मतलब वो मुझे डैमेज करेंगे। इससे पहले कि वो मुझे डैमेज करें मैं उनको डैमेज कर देता हूं। तो इन ऑर्डर टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन, एनी फंडामेंटल लिविंग सेल ऑन दिस प्लैनेट वांट्स टू टच इटसेल्फ, दूसरा सेल को टच करना चाहता है। इसीलिए इंसान को टच करना चाहता है, और कुत्ता कुत्ते को टच करता है, गाय गाय को टच करती है, इंसान गाय को भी टच करना चाहता है, कुत्ते को भी टच करना चाहता है। और कुछ कुछ केस के अंदर गाय कुत्ते को भी टच करती है, और कुत्ते बिल्ली भी आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो उसके पीछे जो फंडामेंटल इवोल्यूशनरी न्यूरोप्लास्टिसिटी वो ये है कि उसको सीख करना, अपना सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन इंश्योर करना है दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। प्रीवियस नोट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द हैंडपिक्ड कॉन्टैक्ट्स। तो जो कुत्ता कुत्ते को टच करना चाहता है, आदमी कुत्ते को टच करना चाहता है, गाय गाय को टच करना चाहती है, चिड़िया चिड़िया को टच करना चाहती है। तो साइंस जो उसको समझ पाया है वो इतना सा समझ पाया है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो दोनों के ब्रेन को अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है कि सही है एवरीथिंग इज ऑल राइट, जस्ट नाइस नाइस गुडी गुडी जेंटल जेंटल। ठीक है, लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि साइंस की हद है कि वो बोल रहा है कि ऑक्सीटोसिन है, मतलब सेल तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है इलेक्ट्रॉन लेवल पर, और इलेक्ट्रॉन के पार भी जाके जो वेव लेवल पर यदि आप देखें तो क्वांटम जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि सेम वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करती है, मतलब उसके साथ मैच करना चाहती है। नेगेटिव नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ गुड फीलिंग के साथ में नेगेटिव फीलिंग के साथ में। तो ये सेल का बिहेवियर नहीं है, ये बहुत ही शिवा का बिहेवियर है। क्वांटम पैकेट जो शिवा है ना उसका बिहेवियर है अपने आप को डू नॉट टच करना। अच्छा, इससे पहले कि आगे कुछ बोलने, समझने की जरूरत है कि जो बेवकूफ आदमी होता है, जिसके पास दिमाग कम होता है, वो जल्दी जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहता है, और वो बस एक चीज चाहता है कि जल्दी से मुझे बता दो कि ये अच्छा है कि बुरा है, ये अच्छा है कि गंदा है, ताकि मैं अपने काम पे लौट जाऊं। काम कौन से है, उसको चाय पीनी है, बीड़ी पीनी है, रील स्क्रॉल करनी है, राम मंदिर के ऊपर उसको एंगेज रहना है, फिर उसके आधार पर उसको वोट देना है, फिर उसको उसका जो 85% पैसा है वो सरकार ने खा रखा है, बचा हुआ 15% के लिए उसको सुबह से लेकर शाम तक अपनी उम्र तमाम करनी है। जॉब पे जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो ये सब काम पे उसको जाना है। उनको ऐसा बोल रखा है कि ये सब गंदी बातें हैं, इधर दिमाग मत लगाओ, कुछ करियर बनाओ, अपना अपना कुछ नाम कमाओ। हालांकि जो करियर बनाना, नाम कमाना है ना, वो भी इसी गंदी बात को मुकम्मल करने के लिए ही है। ये बात वी हैव ऑलरेडी सीन इन मेट सिलेक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड। तो छोटे बच्चे को जब कोई मर्द टच करता है अपनी गोदी में बिठा के, गुड तरीके से या बैड तरीके से, तो जो बेवकूफ लोग होते हैं जल्दी जल्दी कंक्लूजन बताओ, उनके हिसाब से यदि चलें तो मान लो कि
जो आदमी है उसकी सोच गंदी है, गंदा आदमी है, वो अपनी गोद में बिठा के बच्चे को गंदी तरीके से टच करता है। और इसके पीछे लॉजिक ये है सोसाइटी का कि वो उसके साथ अल्टीमेटली सेक्स कर लेगा। अब सेक्स कर लेगा तो उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, ये आपको देखने की जरूरत है। पहली बात तो जब सेक्स करेगा तो उसका जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसके अंदर आदमी अपना सेक्सुअल ऑर्गन डालेगा तो ये बहुत पेनफुल होगा, तो वहीं पर ही डैमेज और सेल्फ सैबोटाज हो गया, क्योंकि उसके ऑर्गन्स में उतनी प्लास्टिसिटी नहीं है, उतने मैच्योरिटी नहीं है। तो आप ऐसे बोलिए कि ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, आप ऐसे मत बोलिए कि चरित्रहीन और गंदा आदमी है। उसको रोकिए, वो काम नहीं होगा, लेकिन उस करने वाले को गंदा मत बोलिए, ये मैं कह रहा हूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, पहले मैं बता देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उस एक्ट को गंदा इमोरल ना बोल के यदि आप बोलते कि नेचर के लॉज के अगेंस्ट है, सोसाइटी के वेलबींग के अगेंस्ट है, वो वेलबींग जो कि थॉट से नहीं आता, वो वेलबींग जो कि नेचुरल लॉज की प्रॉपर्टी से आता है, उस वेलबींग के विरुद्ध है, इसलिए आप ये काम मत करो, प्लीज अंडरस्टैंड। और यदि करोगे तो आप का जो फ्रीडम है जेल में डाल के रेस्ट्रिक्ट हम करेंगे। तो आप पूरी कहानी बताओ। अब आप बोलेंगे इतना दिमाग तो नहीं है ना किसी में, तो वो तो मैं कह ही रहा हूं यार। यदि आप बिना दिमाग के, बिना इंटेलिजेंस के, बिना इंट्यूशन के, बिना क्रिएटिविटी के, बिना करेज के जिएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अभी बताता हूं, 12 साल की लड़की है, आपने उसको बता रखा है कि गंदा 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 है, लेकिन साइंटिफिक जो क्वेश्चन है लोगों का इतना तेज हो रहा है, 12 साल की लड़की सोचती है कि मेरे को बताया तो है ये गंदा है, लेकिन इसमें तो कुछ गंदा है ही नहीं, तो मैं नंगी होकर नाचूंगी, रील बनाऊंगी, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? सोसाइटी में प्रायोरिटी होनी चाहिए साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये सब प्रायोरिटी होनी चाहिए सोसाइटी में। पहले चड्डी पहनो, सबको एक दूसरे से रेस्पेक्ट करके आप बोलो, सबको गाली मत दो, किसी को जलील मत करो, ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपना दिमाग तेज करो, हर जगह लॉजिक लगाओ, कंप्लायंस से मत रहो, क्योंकि कंप्लायंस में आप रहे ना तो कंप्लायंस इज इक्वल टू गुलाम। आपकी आदत पड़ गई वो, तो फिर कुछ भी डाल देगा आपके दिमाग में, ठंडा मतलब कोका कोला डाल देगा, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी डाल देगा, और ये फेना ही लेना डाल देगा, अब की बार मोदी सरकार डाल देगा, बलात्कारी बाबा डाल देगा, जो भी नैरेटिव उसको डालना होगा ना, चप्पा चप्पा भाजपा डाल देगा। यदि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में और इंटेलिजेंस में और एक एक चीज को एकदम क्रिटिकली एनालाइज करने वाली सोसाइटी निर्माण नहीं करेंगे सुपीरियर सोसाइटी की तरह, तो अभी चाइल्ड अब्यूजर जो है वो चाइल्ड को बैड टच करते करते उसके साथ सेक्स कर लेगा, तो इसमें प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सेक्स नहीं करता है, उसके पहले पहले की चीजें कर लेता है, तो उसमें भी प्रकृति के क्या नियमों का उल्लंघन हो रहा है, मतलब उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को टच करने की कोशिश करेगा, इंटीमेसी की तरह उसको टच करने की कोशिश करेगा, तो उसके बच्चे की वो वाली जो टेंडेंसीज हैं वो उसको वो एम्पावर कर रहा है, उसको एनरिच कर रहा है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन का जो इवोल्यूशन है वो रुक जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो उसके स्पर्म की शक्ति ब्रेन को सुपीरियराइज बनाने में, ब्यूटीफुल माइंड बनाने में जाने वाली थी, आपने उधर ले जाने की बजाय आपने उधर काम तेज कर दिया उसके पेल्विक रीजन में, तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम हो गई। बट मैं आपको ही बता रहा हूं कि साइंटिफिक लेवल पर आपकी इतनी ताकत है क्या प्रकृति के नियमों को तोड़ सके, आपके ब्रेन में इतनी प्लास्टिसिटी है क्या? यदि है तो बहुत एक्सेप्शनल केस में, कई हजारों साल में एक बार आपको अलाउड हो जाएगा। अच्छा, वो 1000 साल में एक बार पॉसिबल हो जाएगा, इसको बताने से पहले ये समझा देते हैं कि ये सब कहानी हम क्यों सुना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अपनी दुकान चलाना ऑफ कोर्स वो है, बट उससे बड़ा कोई कॉज है क्या? वो ये है कि सिन क्या है, गलत क्या है, अपमानजनक क्या है, चरित्रहीनता क्या है, इन सबको रिडिफाइन करने की आवश्यकता है, प्लीज अंडरस्टैंड। जैसे हमने रिडिफाइन किया है पूरे 40 मिनट के लेक्चर के साथ में रेस्पेक्ट को, जैसे हमने रिडिफाइन किया है 40 प्लस 40 प्लस 40 मिनट के लेक्चर्स में ईगो को, अहंकार को, जैसे हमने रिडिफाइन किया है लव को, जैसे हमने रिडिफाइन किया है बड़े बड़े निबंध लिख के और लेक्चर देके अपमान को, सम्मान को, क्रोध को, प्लीज अंडरस्टैंड। तो वो सब कुछ रिडिफाइन करने की आवश्यकता है, इसलिए एक एक अच्छी चीज को, एक एक गंदी चीज को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के माइक्रोस्कोप से क्रिटिकली देखने की आवश्यकता है। तो ये एक भाई साहब हमारे साथ में खड़े हैं, इनके साथ डिस्कशन करते हुए बात यहां तक पहुंच गई कि फिर प्यार क्या है, लव क्या है। तो लॉजिक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है।
क्योंकि आगे की सारी बात भी क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि हर जगह लव लव आ जाएगा। और लव से हम याद दिला दें, जो पीडोफाइल होता है ना, वो भी बच्चे को लव करता है। वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं कोई जुर्म कर रहा हूं, वो तो सोचता है मैं बच्चे को प्यार कर रहा हूं। तो वापिस आ जाते हैं प्यार की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। आप मेरे को क्या पूछ रहे हो? आपको नहीं पता? आपने फिल्म में देखा नहीं? फिल्म से देख देख के आपने कभी अपनी माँ को, अपनी किसी गर्लफ्रेंड को, किसी बच्चे को या कुत्ते को ऐसे बोला नहीं, आई लव यू, आई जस्ट लव दिस आइसक्रीम, आई लव यू? तो वो आपने कब बोला था? आपके जहन में अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं, तो जो टॉप का और सबसे बेस्ट फीलिंग भाव है ना, वो लव है। ये कितना सिंपल है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है क्या? तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि एक लड़का लड़की जब प्यार करते हैं तो वो कुछ प्यार है, और जो लड़का लड़का आपस में प्यार करता है तो वो कुछ और है। अरे लड़का लड़का लड़की लड़की पे क्यों जा रहे हो? आप सीधे दिमाग पे क्यों नहीं जाते हो? कि दिमाग के आपके अलग अलग हिस्से हैं जहां पर कुछ कुछ एक्शन करने से, कोई कोई एक्सपीरियंस पहुंचने से, पांच इंद्रियों के माध्यम से कुछ देखा, कुछ सूंघा, कुछ सुना, कुछ टच किया, कुछ जुबान पे लगाया, तो पांच माध्यम से आपके ब्रेन में, न्यूरॉन में अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन जाती है, इंप्रेशन जाते हैं, और ब्रेन के सर्टेन हिस्से, प्लेजर हिस्से, उनमें जाके मजा आता है या खुशी मिलती है। तो उसमें थोड़ा अच्छी हवा चलती है, पंखा चलता है तो भी मजा आता है, फिर कुछ अच्छा चिकन बिरयानी खा लेते हैं तो मजा आता है, फिर किसी के साथ घूम लेते हैं मजा आता है, बाइक चलाते हैं मजा आता है, किसी के साथ प्यार करते हैं मजा आता है। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या है, प्लेजर लेवल्स हैं, जो अच्छे बुरे की कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किए गए हैं बिकॉज रिसोर्स मैनेजमेंट उतना नहीं है, और सोसाइटी की इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी और प्लासिडिटी उतनी नहीं पहुंची कि मैनेज कर सके। प्लीज अंडरस्टैंड। तो एक लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, उनको एक दूसरे के साथ में रहने में इतना मजा आता है कि उनको किसी और ह्यूमन के साथ में रहने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे दो लड़के एक दूसरे के साथ रहते हैं, बोलते हैं आई लव यू, क्योंकि उनको एक दूसरे के अलावा किसी और ह्यूमन के साथ में रहने में, समय बिताने में उतना मजा नहीं आता। तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि यार जब लड़का लड़की के साथ रहेगा तो उसको उस ह्यूमन का देख कर, सूंघ कर, सुनकर, टच करके जो इंफॉर्मेशन ब्रेन के जिस हिस्से में जाके कुछ प्लेजर देगी, वो कोई बहुत अलग दुनिया में है, और एक लड़के को लड़के के साथ में जो सारे इंफॉर्मेशन के माध्यम से प्लेजर मिलेगा, वो एक कोई अलग ही अतरंगी दुनिया में। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं तो कहना चाह रहा हूं कि वो एक ही कॉमन सेंट्रिक कॉन्शियसनेस है जहां पे जाके वो प्लेजर मिल रहा है। तो आप बेसिकली ब्रेन के लेवल पर कैसे निर्धारित कर सकते हो कि सही है कि गलत है? मैं तो ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। और आगे सुनो, एक लड़के को एक लड़की के साथ में रह के, या फिर एक गे लवर को अपने गे लवर के साथ में रह के, उसके साथ समय बिता के इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि खाना भूल गया, वो पानी भूल गया, वो रील भूल गया, वो बैठना भूल गया, वो बस उसको देखे ही आ रहा है, उसकी उसके शरीर से आने वाली स्मेल को, उसके पूरे के पूरे। देखो यार, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है ना, तो उसमें 1/6 सेकंड लगते हैं, लेकिन एक इंसान का ब्रेन दूसरे इंसान की प्रेजेंस को जितने टाइम में सेंस कर लेता है ना, उसमें 1/20 सेकंड लगते हैं। मतलब कि आंख में से देखा कि सामने कौन है, उससे पहले ब्रेन को पता चल गया कि डैमेज करने वाला है कि कंफर्ट होने वाला है इसकी प्रेजेंस में। आप समझ रहे हैं? तो जब आदमी कई कई घंटे बिताएगा ह्यूमन के बीच साथ में रह के, तो उस लेवल का न्यूरोप्लास्टिक फायरिंग आप समझ रहे हैं? आपकी औकात है क्या ये डिसाइड करने की क्या सही है क्या गलत है? सच ए स्टूपिड सोसाइटी।